TunePocket.com. Hello students, today we start our new session of chapter number 2, polynomials. In this session we solve some examples which are based on division algorithm of polynomials. So we start our this session with example number 1. Here you have to find all zeros of these polynomials is given in this form, and its two zeros are root 3 and minus root 3. That means we know that these polynomials have maximum power 4, so it has maximum 4 zeros are possible, right? Among them 2 are given, so in this case we have to find remaining 2 zeros of these polynomials, right? So we start with this example. Here root 3 and minus root 3 are two zeros of p of x, polynomials p of x. That means these two 0 can be written in this form, and that are its factor of p of x. That means x minus root 3 and x plus root 3 are two factors of these polynomials. That means the product of these two factors, that means x minus root 3 into x plus root 3 are also factor of polynomial p of x. So the product of these can be written as x square minus 3. We all know that x minus a, x plus a is equal to x square minus a square. We know that this identity, right? So is also factor of p of x. Now by using division algorithm, here p of x is equal to your x raised to 4 plus 4x cube minus 8x square minus 12x and plus 15, and your g of x is equal to x square minus 3. Now by using division algorithm we solve this example. X square, x raised to 4, 4x cube, 8x square, 12x plus 15, or x square minus 3. We know that how to solve this example. We have already solved many examples by using this division algorithm. In that method we have to find the quotient portion. Then we have to find x raised to 4, the first term of dividend divided by first term of divisor. So x square will be cancelled, so x square will be remaining. So x square will be the first term of your quotient, right? To multiply x square with x square, that means you will get x raised to 4. X square into minus 3, that means minus 3x square. So you have to write that term at the same place, under the same place with the same power. तो माइनस 3x स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट? अब हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर साइन चेंज करने का टर्म आ गया है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 दैट मीन्स 0. यहाँ पर से 4x स्क्वायर जो है 4x क्यूब जो है हम नीचे लाएंगे और यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 5x स्क्वायर, राइट? फिर से हम
12x जो है उसको नीचे लाएंगे। अब ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो क्वेश्चन का सेकंड टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x⁴, अब साइन के साथ हम लिखेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। x² कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा डिवाइजर क्वेश्चन का सेकंड टर्म जो होगा वो +4x हो जाएगा। तो 4x को मल्टीप्लाई करना है आपको x² - 3 से, तो 4x × x² दैट मीन्स 4x³, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, -12x, राइट। 4x × -3 -12x, राइट। अब साइन चेंज करने का टर्म आ गया। अब 4x³ - 4x³ 0, -12 + 12x इट्स ऑल्सो 0। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे 5x², और यहाँ पर से 15 जो है उसको नीचे लाएंगे, वो भी प्लस के फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे कि -5x² जो है उसको x² से डिवाइड करेंगे, तो x² चला जाएगा, तो -5 बचेगा। तो -5 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे तो -5x², माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब साइन चेंज कर लो, तो साइन चेंज हो गई, तो ये माइनस में था, ये प्लस में था, 0 हो गया, ये प्लस में माइनस में 0 हो जाएगा। तो आप जानते हो कि हमारा क्वेश्चन का टर्म जो हो गया, क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन QX = x² + 4x - 5, राइट। अब हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन आया उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम यूज करेंगे। तो -5 जो है उसके दो पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे, उनके फैक्टर्स होंगे 1 और 5, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा, दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो माइनस हमें लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब माइनस किसको लेंगे वो डिसाइड कौन करेगा, हमारा मिडिल टर्म की साइन। मिडिल टर्म में आपको प्लस चाहिए, दैट मीन्स आपकी जो बड़ा नंबर जो होगा उसको प्लस रख दो, बाकी के नंबर को माइनस कर दो। तो ये वहां पर -1 × 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -5 हो गया और इन दोनों का एडिशन हमारा +4 हो गया। ठीक है फ्रेंड। तो हम उसको लिखेंगे x² -x + 5x - 5, x कॉमन निकालेंगे तो x -1, यहां पर से 5 कॉमन निकालेंगे तो x -1 और दूसरा होगा x + 5, राइट। अब तो ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए। अब ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए, दैट मीन्स हम इसको असाइन करेंगे 0 के साथ। अब 0 के साथ असाइन करेंगे तो x - 1 = 0, so x = 1 and x + 5 = 0, therefore x = -5. That means remaining two zeros are 1 and -5. So this way you can solve this type of example which are most probably asked in exam. ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मेथड थी वो बहुत ही इजी मेथड है। इस टाइप की मेथड्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो मे भी चेंज हो सकता है, लेकिन मेथड जो है वो आपको यही होगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर 2x³ + 3x² - 1 है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो रहा है वो 2x³ + 3x² - 1 हो रहा है। अब इनमें से एक पॉलिनोमियल्स आपकी ये वाली है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि a एंड b नंबर है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ab होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ab जो प्रोडक्ट है वो यहां पर हमें ये वाली मेंशन की है 2x³ 3x² - 1। इनमें से एक जो पॉलिनोमियल्स है वो आपकी ये वाली है, तो x² + 2x + 1, और यहां पर हम b लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें b अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 2x³ 3x² - 1 डिवाइड बाय x² + 2x + 1। मतलब कि हमें क्या करना है, सिंपल डिवीजन करना है फ्रेंड्स, राइट। तो डिवीजन जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हम करेंगे। तो आपका डिवाइडेंड जो होगा वो आपका 2x³ + 3x² - 1 होगा, और डिवाइजर जो होगा 2x + 1 फ्रेंड्स। ठीक है। अब उसको जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर जैसे ही हमने सॉल्व किया है वैसे ही हम ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। तो यहां पर आपका फर्स्ट टर्म जो है 2x³ है, उसको डिवाइड करेंगे x² के साथ, तो x² चला जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। तो यहां पर आपको क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 2x। अब 2x का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों टर्म्स के साथ करेंगे
तो क्या आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन 2x क्यूब, राइट। अब 2x इंटू 2x दैट मीन्स 4x स्क्वायर। आपको ये चीज याद यहाँ पर रखनी है कि कॉमन जो पावर आ रहा है, मतलब कि सेम पावर जो होगा उसके नीचे ही आपको ये मल्टीप्लीकेशन लिखना है। अब 2x एंड 1, तो यहां पर तो कोई टर्म है नहीं x वाला, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 2x प्लस करके। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, वी ऑल नो दैट, ये माइनस और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। अब 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर सेम टर्म्स 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दैट मीन्स माइनस x स्क्वायर होगा। अब हम ये वाला x वाला टर्म लिखेंगे तो माइनस 2x और ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे तो -1। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको कि ये वाला जो टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के साथ, तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ -1। तो क्वोशंट का सेकेंड टर्म होगा -1, तो -1 के साथ हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे सभी टर्म्स का, वो आंसर होगा -x स्क्वायर माइनस 2x एंड -1। डिवीजन के अंदर हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस होगी, सेम टर्म्स है, तो उनका रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज 0 हो जाएगा। दैट मीन्स द अदर पॉलिनोमियल्स इज 2x minus 1, दैट्स योर आंसर, राइट। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये वीडियो के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, जिनमें से फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो उस टाइप्स के एग्जाम्पल्स जो है वो ज्यादातर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सिर्फ क्या करना है कि मैथ्स के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है कि उसके मेथड जो है उसको समझ लो आप। बाद में एग्जाम्पल जो होगा तो वो भी कहीं पर से कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो होगा वो यही मेथड से सॉल्व करेंगे तो 110% आपका आंसर जो है वो करेक्टली इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियो जो है उनको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल के पास जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।